राइट. सो अगर एक लिंक ख़त्म हो जाती है देन यू हैव टू ज्वाइन अगेन, राइट ना, यूजिंग सेम लिंक यू हैव टू ज्वाइन अगेन. अंडरस्टूड बेटा? ओके. ओके. Okay. Start without wasting our time. So last time I think we have completed our IPAC naming, that is nomenclature, right? Yeah, was not in second session. So today we have to start with 4.3, that is chemical property of carbon compound, right? Let me share the screen. Okay. In 4.3 chemical properties of carbon compound, first we have to see the first property of the carbon compound, that is combustion reaction, right? We have to see what is combustion reaction. What is combustion reaction? Here you can say that any fuel, right? Any fuel or any hydrocarbon, when you heat or when you burn it in presence of oxygen, reduce carbon dioxide, water, and heat, right? Reduce carbon dioxide, water, and heat, and such kind of reaction is called as combustion reaction. Combustion क्या होता है? कोई अगर किसी ने पूछा what is combustion reaction, what you will say, right? Any hydrocarbon or fuel, right now, when it heated in presence of oxygen, it gives carbon dioxide, water, and heat, right now. So such kind of reaction is called as combustion reaction. Understood? Yes. So here you can see the picture within the fuel right now. It is heated or right, it is burned in presence of oxygen, right? And here the vapors are coming out, and these vapors are nothing but a water vapor and carbon dioxide gas, right now. So this is so. So such kind of reaction is called as combustion reaction, isn't it? Okay. Next topic. If you see combustion reaction, in this combustion reaction, you can see that we are adding oxygen in it right now, and we all know that what is oxidation reaction. Oxidation reaction is nothing but the reaction in which oxygen is added right now. The reaction in which oxygen addition takes place is called as oxidation reaction. In this reaction also, oxidation or means we can say that oxygen is added right now in hydrocarbons. So because of this, we can say that combustion is nothing but oxidation reaction only, or we can say it is a part of oxidation reaction, or it is a type of oxidation reaction. Oxidation का एक type है, right ना? Understood? Let's as I told you what is now. There are two types of combustion. There are two types of combustion reaction: complete combustion reaction and incomplete combustion reaction. Complete combustion means what? If what we can say full supply of oxygen is there, right? If full supply of oxygen is there, right? तो क्या होगा? It will form a gas, heat, and light. Such kind of combustion is called as complete combustion. मतलब क्या होता है बेटा? अगर फ्लूइड के अंदर ऑक्सीजन ऐड किया हमने और ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड नहीं है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो कंप्लीट है और बहुत सारा ऑक्सीजन ऐड किया हमने, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन वी हैव एडेड राइट ना, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ऐड करने के बाद क्या हुआ? ये कंप्लीट कंबशन जो फ्यूल है वो पूरा के पूरा जो यूटिलाइज हो जाएगा. This will be converted into a gas in completely gas convert हो जाएगा. ये फ्यूल जो है वो completely gas में convert हो जाएगा. तो जब ऑक्सीजन हम लोग क्या करेंगे? completely लेंगे या एक्सेस में लेंगे, तो ये जो फ्यूल है वो 100% जो है गैस में कंप्लीट क्या होगा? गैस में कन्वर्ट हो रहा है. So such type of combustion is called as complete combustion. Here mostly
लिमिटेड लिया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ फ्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, बट कुछ फ्यूल जो है ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, एंड बिकॉज ऑक्सीजन कम पड़ रहा है तो ये कार्बन है, समझिए फ्यूल जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन है, तो कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अगर कम ऑक्सीजन कम है तो या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और या तो कार्बन बनाएगा, राइट, क्या बनेगा, आइदर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन। इफ वी आर गेटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड or carbon as a byproduct instead of carbon dioxide, then we can say that it is incomplete combustion reaction. The combustion reaction in which what limited supply of oxygen is take place, or we can say limited oxygen is supplied, right now. So that combustion is called as what, incomplete combustion. Understood? वापस से repeat कर रहा हूँ, ऐसा combustion जिसमें excess of oxygen supply किया जा रहा है, फ्यूल पूरा के पूरा यूटिलाइज हो रहा है और कंप्लीटली वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैस में, कौन सी गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, देन सच काइंड ऑफ कम्बशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट कम्बशन। बट अगर मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन जो लिया वो क्या लिया, लिमिटेड लिया, है ना, लिमिटेड सप्लाई लिया, लिमिटेड सप्लाई लिया तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, तो ऑक्सीजन कम पड़ेगा तो फ्यूल क्या होगा, फ्यूल या तो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा, या तो फ्यूल कार्बन जो है वो ऐसी गैस बन जाएगा, या फिर अगर ऑक्सीजन कम पड़ रहा है तो इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे विल फॉर्म व्हाट, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर प्रोडक्ट में हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड लिमिटेड सप्लाई यूज करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन बने मिलेगा, तो ऐसे कम्बशन को हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट कम्बशन। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट कम्बशन। अंडरस्टूड? यस। नेक्स्ट वन, next one, let's take an example of a complete combustion reaction. As I told you, uh, right? It could be carbon, it could be hydrocarbon, it could be uh, alcohol. All are nothing but a hydrocarbon, or we can say all are nothing but a compound which consists carbon, and they are organic compound. So if you react organic compound, carbon consisting compound with oxygen, right, in presence of heat, yeah, if you heat this organic compound in presence of oxygen, what they will do, they will form oxide of that. यहाँ पे क्या ऑक्सीजन इसका फॉर्म होगा, ऑक्सीजन में से रिएक्ट करेगा एंड विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, और साथ ही साथ में क्या होगा, हीट भी निकलेगी एंड क्या होगा, लाइट भी निकलेगी। वही मतलब अगर लकड़ी को जलाया जाएगा, लकड़ी क्या होती है, लकड़ी में कार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन दोनों भी उसको बोल सकते हैं, जलाएंगे तो क्या मिलता है हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड की धुआं निकलते हुए दिखता है, और साथ में हम लोग को हीट दिखती है, क्या दिखती है, हीट मिलती है उसमें से, और लाइट दिखती है, लाइट जो है ग्लो होता है ना, उजाला आता है, राइट। सिमिलरली इन दिस केस कार्बन अगर रिएक्शन करूंगा तो क्या होगा, मीथेन इज दैट, व्हेन मीथेन CH4 व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, राइट, हीट करूंगा, व्हाट विल हैपन, ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड बनेगा, इसका ऑक्साइड बनेगा, कार्बन का ऑक्साइड क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर का, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो क्या उड़ जाएगी ये, उसके बाद वाटर का ऑक्साइड, वाटर का ऑक्साइड क्या बनेगा, सॉरी हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या बनेगा, H2O बनेगा, राइट। हाउ टू फॉर्म हम लोग को मालूम है, इसकी वैलेंसी +4, इसकी वैलेंसी -2 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, क्या बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए, अगर +1 वैलेंसी है और इसकी -2 वैलेंसी है तो ये भी बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए कि ये H2 कैसे फॉर्म होगा, है ना, आना चाहिए, इससे पहले बता चुका हूँ। तो दोनों के पानी ये भी क्या है, हीटिंग हो रही है, ये भी वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा, तो दो चीज निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, राइट, एंड साथ में ये कॉमन है, ये चीज कॉमन है, कंप्लीट हो कंबशन किया ना, इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन का कॉमन चीज है कि इसमें हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंड because it is exothermic reaction, because therefore it generated heat and light, है ना, तो लाइट भी जनरेट होती है। अंडरस्टूड? समझा बेटा? Here you can see that इसका भी ऑक्साइड बनेगा, कार्बन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन का ऑक्साइड सेम, राइट। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ व्हाट इज द क्या बोलेंगे, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, वाटर, राइट। नाउ we will balance the reaction. Here how many carbons are there, two carbons are there, so I will put 2 over here, and
here hydrogen, how many hydrogens are there? 3, 2, and 1. 6 hydrogens are there. So I will put 3 over here. Now how many oxygens are there? 3 and 4. 7 oxygens are there. So one oxygen is already here. So I will make this oxygen O2 6. To make O2 6, I will put 3 over there. Right? That is balance. Understood? समझा बेटा? एक ही बच्चे को समझा? Only one student is there. Yes, respond me. Or responding. Priya, Swarni. All respond. What about Swarangi? Swarangi, are you there? So you should respond. Now both of you respond. Right? Okay. Now next one. As I told you, what is incomplete combustion reaction? This is an example of what? Incomplete combustion. Write it down. यहाँ पे mention नहीं किया है. Incomplete combustion. So what is incomplete combustion? When a fuel is heated in presence of oxygen, when in presence of limited supply of oxygen, limited, कम है, ज़्यादा नहीं बहुत कम है, limited supply of oxygen, oxygen का limited supply हो रहा है, right ना? तो then what will happen? Fuel as it is रह जाएगा, fuel मतलब कार्बन है तो कार्बन as it is रह जाएगा, otherwise it will consume less amount of oxygen, तो less consume करेगा तो instead of dioxide it will form monoxide. So always in incomplete combustion reaction, always you will get the carbon and carbon monoxide as a byproduct. So what is incomplete combustion reaction? Heating of any fuel or any hydrocarbon in absence of sorry, in limited supply of oxygen, it gives carbon monoxide and carbon as a byproduct, right? With heat and light, such kind of what combustion is called incomplete combustion reaction. Always remember that incomplete combustion जो होता है it burns with sooty flame. It burns with sooty flame. What is sooty flame? जो धुआं निकलता है वो flame जिसमें धुआं निकलता है उसको बोलेंगे sooty flame. And complete combustion always burns without sooty flame. Always आपको वहाँ पर flame जो रहेगी वो कैसी ब्लू कलर की flame मिलेगी. कौन सी flame मिलेगी? ब्लू. Complete combustion में कौन सी flame मिलेगी? ब्लू. वहाँ पे धुआं नहीं निकलता. बट इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है धुआं निकलता है ब्लैक धुआं निकलता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन जो है एज इट इज उड़ता है ना जो जला नहीं है कार्बन दिख से तो वो उड़ता है तो ब्लैक दिखता है राइट so definition is given over here what is incomplete combustion the combustion reaction is occurs when supply of oxygen or air is poor no limit supply of oxygen है ना and water is still produced but carbon and carbon monoxide is produced instead of carbon dioxide. As I told you, it is a reaction in which is taking place in limited supply of oxygen, right? And which produces carbon monoxide, carbon, and water as a product. Understood? Yes or no? So this is the example of incomplete combustion. You have seen this right now हमने देखा होगा कई बार जगह पे कहीं भी कोई चीज जलती है हम लोग घर में कागज जलाएंगे कुछ भी जलाएंगे तो क्या होता है वो जलता है धुएं के साथ क्यों जलता है बिकॉज दो रीजन मैं दूसरा रीजन आगे बताऊंगा फिलहाल के लिए पहले रीजन समझो कि बिकॉज उसके अंदर वो जो है हमारा ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रही है उसको एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग को उसको ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रही है तो इसलिए वो क्या हो रहा है जल रहा है इसके साथ धुएं के साथ जल रहा है याद है कि हमने घर में भी देखा होगा चूल्हा होता है ना चूल्हा स्टोव होता है तो स्टोव नॉर्मली कैसा होता है रेड फ्लेम और ब्लू फ्लेम से जलता है राइट जब हम लोग पंप मारेंगे तो उसमें एक होल होता है वो होल में से ऑक्सीजन निकलती है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो क्या करता है हमारा फ्यूल जो है वो ब्लू फ्लेम में जलता है बट अगर वो जो होल है वो होल के अंदर अगर क्या होगा कचरा वचरा आ जाएगा तो ऑक्सीजन बिकॉज सप्लाई नहीं हो पा रही है तो फ्यूल ऐसे ही जल रहा है विदाउट ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जल रहा है तो उससे क्या होता है हमारे बर्तन काले हो जाते हैं काले क्यों हुए काला होने का रीजन क्या है बिकॉज वहाँ पे सूट निकल रहा है धुआं निकल रहा है धुआं से हमारा बर्तन क्या आएगा काला हो जाएगा ये सिंबल है ये वैसल जो है वो काली रहते हैं ये सिंबल है उसका कि भाई हमारा सूटी फ्लेम से जल रहा है राइट ना अगर हम नहीं करेंगे अंडरस्टूड एक मिनट
more thing is that saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. So saturated hydrocarbon is what the hydrocarbon which consists of single bond, right? I have already told you in the previous lectures, right? saturated hydrocarbon क्या होता है जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलेंगे saturated hydrocarbon. इसको डीप में मैं आपको समझाया था कि एक्चुअली होता क्या है saturated, है ना? जिसमें जगह होगी एडिशन के लिए तो उसको बोलते हैं, जिसमें जगह नहीं होती उसमें उसको बोलते हैं saturation, और इसमें जगह होती है उसको हम बोलते हैं unsaturated compound. वापस से रिपीट कर देता हूँ, जिसमें जगह नहीं होती. लाइक एग्जांपल, अगर आपको मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो आप बोलेंगे थक गया सर, अब पढ़ने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप ये will say that I am saturated. तो ये saturated is what? आप दिमाग में कोई जगह नहीं है फील करने के लिए. बट अब आपने अभी स्टार्ट किया लेक्चर तो क्या होगा, बिकॉज ये आपका दिमाग जो है फ्री है, तो नाउ यू कैन से दैट यू आर अनसैचुरेटेड, राइट? आपके दिमाग में जगह है अभी भी अंदर एम्प्टी हो चुकी है. तो सैचुरेटेड कंपाउंड वो जिसके अंदर कोई भी चीज ऐड हो सकती है. अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एडिशन नहीं होता. अंडरस्टूड? एडिशन सिर्फ सैचुरेटेड कंपाउंड में सॉरी, मैं रॉन्ग कर रहा हूँ. सैचुरेट वो जिसमें जगह नहीं होती है. सैचुरेट वो जिसमें जगह नहीं होती है. तो जगह नहीं है इसका मतलब इसमें एडिशन नहीं होगा. बट अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो जिसमें जगह होती है. जगह है इसका मतलब क्या होगा, इसमें एडिशन होगा. अब अगर मैं बॉन्ड के फॉर्म में बताऊंगा तो सिंगल बॉन्ड के जितने भी कंपाउंड है, ऑल कंपाउंड व्हिच इज हैविंग सिंगल बॉन्ड आर कम्स अंडर सैचुरेटेड कंपाउंड, एंड द कंपाउंड व्हिच आर हैविंग व्हाट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आर कम्स अंडर अनसैचुरेटेड कंपाउंड. याद है, अगर नोट इट डाउन, सैचुरेटेड कंपाउंड ऑलवेज बर्न्स without sooty flame. सैचुरेटेड कंपाउंड बर्न्स without sooty flame, धुआं नहीं निकलता इसमें. But if you talk about unsaturated compound like double bond, triple bond, in a double bond, triple bond आ गया इसका मतलब unsaturated compound है, and unsaturated compound always burns with sooty flame. Remember, unsaturated compound always like this, naphthalene and camphor. These are containing double bond. Here double bond is there. So if double bond is there in the compound, they will burn with sooty flame. Right? The compound which burns with sooty flame are unsaturated compound, and the compound which are saturated always will burn without sooty flame. If you talk about color of the flame, so this flame would be what? Yellow color. येलो कलर का फ्लेम होगा, सूटी फ्लेम वाला कलर, जो अनसेटेड कलर. और जो जिसमें सूट नहीं निकलता वो कलर फ्लेम कैसा होता है, ब्लू कलर होता है. हमने स्टोव देखा होगा या फिर हमारा गैस देखा होगा, गैस का जो ब्लू कलर है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन है, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. राइट? अंडरस्टूड? यस. Now, next one is incomplete combustion. Now we will talk about incomplete combustion. As I told you, सब समझा दूंगा. What is incomplete combustion? Here I have given the example. So now we will take an example or reaction of incomplete combustion. We will take a same fuel, carbon, methane, and ethanol. As like we have taken in what complete combustion, we will take same fuel and we will do incomplete combustion. Means what? Fuel is same, but I am supplying limited supply of oxygen. Oxygen is less, and less oxygen is we are providing. So what we get? We know that when we get monoxide or carbon, right? So carbon monoxide, what will happen? Carbon जब oxygen से react करेगा, अगर oxygen कम है तो it will form carbon monoxide. Because oxygen is too put to over here, because carbon is too put to over here. So this is the reaction. Next, if we talk about methane, if we react limited supply of oxygen with methane,
carbon monoxide and water will form. Now we have to balance it in our equilibrium task. So if I put what we do, oxygen is balanced, right? Now what we have to balance? We have to balance hydrogen. All the thing is balanced. Carbon balance, oxygen balance. Only hydrogen we have to balance. So what we have to do? I will put two over here. यहाँ दो पेयर ऑक्सीजन कितना हो गया? तीन हो गया. ऑक्सीजन और हो गया. तो और करने के बेटर है कि मैं इवन कर लूँ. What I will do? I will make it even. इवन करने के लिए यहाँ पे क्यों लगाऊंगा? राइट ना. और कभी भी नहीं करेंगे. रिएक्शन और करेंगे तो इसमें इजीली नहीं, मतलब वो रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं होगी. So what I will do? I will make it even number of oxygen. So 2 to 4 oxygen are there. Oxygen बैलेंस हो गया. कार्बन कितना हो गया? कार्बन 4 हो गया. सॉरी कार्बन 2 हो गया. ये कार्बन is 1. So I will put 2 over here. If I put 2 over here, hydrogen will be so 8 हो जाएगा. तो अभी वापस इसको क्या करूँगा मैं? 4 से मल्टीप्लाई करूँगा to make it 8. Now carbon is balanced, right? Hydrogen is balanced, right? Oxygen is what? Not balanced. 4 oxygen and this is what? 2 oxygen. Means 6 oxygen are there. So I will put 3 over here. The reaction now balanced. Understood? You can take a screenshot of this page, right? Only one is should be there. I told you all of you will have to respond now. Mythili, Yuvraj, yes, respond. Now, since you can go for work, ethanol, India, ethanol with oxygen, same will form carbon will goes to oxygen and you get carbon or carbon monoxide, and hydrogen will react with water, oxygen, and you will get more water also. There is no ये reaction आपकी बुक में नहीं दिया है, मैंने ऐसे ही बनाया हूँ, but there is no need to write this reaction. Okay. Now, understood this part? Sum them it up. Okay, let me check कुछ मिस हुई क्या, कुछ मिस हुई क्या. तो मैंने जो पार्ट लिया था वो एटलीस्ट मैं पार्ट को कवर अप किया हूँ जो आपके बुक में दिया था. एक्टिविटी नंबर 4.3, राइट. कमर्शियल पार्ट के अंदर से एक्टिविटी नंबर 4.3 से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट. So what is activity number 4.3? First we will see the combustion, what is given in your combustion reaction. So जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, you can read right now. Then the carbon is burned in presence of oxygen form carbon dioxide है ना, releases became lighter. जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है. And this reaction I have already explained you. Reaction मैंने आपको explain कर चुका हूँ, right. Here it is given that saturation compound clean clean flame. Clean जो होता है, clean होता है मतलब धुआं नहीं निकलता. Blue flame होती है धुआं नहीं निकलता. And but unsaturated compound give yellow flame जो burns with lot of smoke. Smoke means what? Smoke means what? Sooty flame. Understood? Smoke means what? Sooty flame. Understood? Now, next, what is given over here? वो एग्जाम्पल दिया घर के होम का दिया कि अगर हम लोग नॉर्मली केरोसिन का वो स्टोव यूज़ करते तो अ, अगर ऑक्सीजन रिच होता है वहाँ पर, मतलब होल होता है, उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर अपना जो ब्लू फ्लेम आती है, बट क्लीन फ्लेम आती है, ब्लू फ्लेम आती है. बट अगर हम लोग क्या करेंगे, कभी कभार वेसल जो है ब्लैक हो जाती है बॉटम. तो ब्लैक हुआ क्यों? इसका मीन्स जहाँ पर वो ये हवा निकल रही है, मतलब ऑक्सीजन आ रही है वहाँ से, वो जो होल है वो उसमें कुछ ना कुछ कचरा फंसा हुआ है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं ठीक से हो रही है. एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है वहाँ पर सूटी फ्लेम आ रही है. अंडरस्टूड? इवन नॉर्मली क्या होता है सैचुरेट कंपाउंड जो है उसमें दूसरा अगर बात करेंगे अनसैचुरेट कंपाउंड में, या फिर अगर बात करेंगे तो कुछ कुछ कंपाउंड में कुछ कुछ हमारे फ्यूल्स के अंदर क्या होता है नाइट्रोजन एंड सल्फर भी होते हैं. तो नाइट्रोजन सल्फर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देते हैं नाइट्रोजन और सल्फर के, जो कि पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. ठीक है, ये सब दिया हुआ है जो मैंने अभी रीड किया वही था. Now let's do the activity number 4.3. What is given over here? What we have to do? We have to take a carbon compound like naphthalene, camphor, alcohol, etc. one by one.
इन स्पैचुला, स्पैचुला क्या होता है, एक तरह का चम्मच होता है, उसमें मैंने लिया ये कंपाउंड को एंड आई विल बर्न इट, बर्न दैम, राइट ना, उसको बर्न करूंगा, उसको जल कर जलाऊंगा, राइट ना, एंड देन वी हैव टू ऑब्जर्व द नेचर ऑफ फ्लेम, फ्लेम का नेचर ऑब्जर्व करना का है, एंड वी हैव टू नोट दैट स्मोक इज देयर और नॉट, smoke is producing or not, right now. And what we'll do, we will place a metal plate or metal spoon above the flame. अगर अगर वहाँ पे स्मोक निकलेगा तो वो अपना जो प्लेट है या फिर हमारा जो स्पून है वो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। और अगर नहीं, अगर सूटी फ्लेम नहीं निकलेगा, धुआं नहीं निकलेगा, स्मोक नहीं निकलेगा, तो हमारा चम्मच जो है काला नहीं होगा। अंडरस्टूड? यस, समझा? ओके, सो एज आई टोल्ड यू, if you burn naphthalene camphor, right? Here you can see that naphthalene camphor is what, unsaturated compound, right? Unsaturated compound. This is containing double bond. This containing double bond, because they are containing double bond. So they are nothing but a unsaturated compound. And as I told you, unsaturated compound always burns with sooty flame. Always burns with sooty flame. Sooty flame means what? The flame which consists of smoke, right? ना smoke, ऐसा धुआं होना चाहिए। तो यहाँ पर because they are unsaturated compound, they will form sooty flame। यहाँ पे लिखे हम लोग कि नेचर ऑफ फ्लेम विल बी what, येलो कलर, येलो कलर फ्लेम होगा और सूट प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस सूट। किसके केस में, किस कौन से केस में प्रोड्यूस करेगा? सूटी फ्लेम, ऑपोजिट। कौन से केस में? नेफ्थेलिन एंड कैम्फर के केस में। व्हाट अबाउट अल्कोहल? अल्कोहल, फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल क्या होता है? single bond always, in alcohol always there will be a single bond only. So saturated compound, alcohol is saturated compound, so therefore it does not produce any kind of soot or any kind of smoke. So flame will be blue। flame कैसी होंगी? ब्लू होंगी, क्लीन ब्लू फ्लेम होंगी। एंड ब्लू फ्लेम होने की वजह से क्या होगा, उसमें कोई धुआं नहीं होगा, देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ स्मोक, एनी काइंड ऑफ सूट, हम लोग मेंशन करेंगे। अंडरस्टूड? एक्टिविटी 4.3 समझ में आई? यस। अरे ओनली वन स्टूडेंट इज देयर, व्हाट अबाउट अदर? यस, सब चले गए क्या? यस, वेरी गुड। युवराज, आर यू देयर? युवराज, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग बेटा। ओके, yeah, you have to rejoin again after the meeting will end, right now. After completion of this link, you have to rejoin using same link, right now. अगर ये लिंक खत्म होती है, आपको सेम लिंक पे क्लिक करना है और रीजॉइन करना है। अंडरस्टूड? ओके, ओके बेटा। Now let's move to activity number 4.4. In this, what we have to do, we have to light the Bunsen burner. I will show you what is Bunsen burner, which kind of burner is called as Bunsen burner, and adjust the air hole. So one hole is there, जिसको collar बोलते हैं। ये hole को यहाँ पे air hole बोला है। This hole is also called as collar, है ना। तो कॉलर को घुमाने के लिए बोला है, एडजस्ट करने बोला है। एंड घुमाने के बाद आपको कौन सी टाइप की फ्लेम दिखती है वो देखना है। कौन सा येलो फ्लेम कब दिखती है, ब्लू फ्लेम कब दिखती है, वो हम लोग को देखना है। तो लेट्स डू द एक्टिविटी बाय यूजिंग द picture. So this is called as Bunsen burner. This kind of burner is called as Bunsen burner. So in this collar is called as air hole, right? दिस कॉलर कॉलर कंसिस्ट ऑफ दिस एयर होल, है ना। अब होता क्या है, ये एयर होल जो यहाँ से, जो यहाँ पे अंदर भी जो है ना, अंदर के जो पार्ट है उसमें भी होल होता है। तो ये जब उसके ऊपर आता है तो यहाँ पर हवा जाने के लिए रास्ता बन जाता है। हवा जाएगा मतलब हवा मीन्स व्हाट, ऑक्सीजन। एयर का मीन्स व्हाट, ऑक्सीजन। अगर ये ओपन रहेगा इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन पास होंगी एंड यू विल गेट ब्लू फ्लेम, है ना। तो जब व्हेन एयर होल इज ओपन, एयर होल इज ओपन, you will get what, blue flame, means non-sooty flame. You will not get any kind of soot, isn't it? Understood? But if you close it, इसको थोड़ा सा घुमा देंगे, ऐसा टर्न करेंगे ना, घुमा देंगे इसको, ऐसा टर्न करेंगे, घुमा दो,
तो घुमाएंगे तो क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, ये जो हिस्सा है ना वो बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, बिकॉज इट इज क्लोज, तो क्या होगा, देयर इज नो, हाँ, नो ऑक्सीजन ओवर देयर, राइट ना, नो ऑक्सीजन इज व्हाट गेटिंग इनसाइड, राइट ना। तो होगा क्या, बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट गोइंग इनसाइड, तो होगा क्या, ऑक्सीजन यहाँ सप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, तो ये फ्लेम जो है वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम नहीं है, ये ब्लू फ्लेम है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो दिस फ्लेम इज कन्वर्टेड इनटू येलो फ्लेम विच इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग फ्लेम। बेटा ये आपको मेंशन याद रखना है, ये आपको बहुत जगह काम आएगा फ्यूचर में। तो येलो फ्लेम जो आएगी उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग फ्लेम। रिड्यूसिंग फ्लेम मतलब क्या, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता। एंड येलो फ्लेम ऑलवेज बर्न विथ सूट, राइट ना, दे आर सूटी इन नेचर, धुआं निकलेगा, अंडरस्टूड। हमारे मोमबत्ती देखे हुए, मोमबत्ती की जो फ्लेम होती है येलो होती है ना, तो उसमें धुआं निकलता है कि नहीं निकलता, बट अगर ब्लू फ्लेम है, जो गैस की फ्लेम होती है उसमें धुआं नहीं निकलता, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड, यस, व्हाट अबाउट अदर, अंडरस्टूड और नॉट, रिस्पॉन्ड मी फास्ट, हेलो, यस, ओके, धानिया, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाँ, ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, किसी को पता है, अभी कंबशन पढ़े हम लोगों ने, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देयर आर मेनी काइंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, आई थिंक इससे पहले मैं बता चुका हूँ, डेफिनेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीजन बताया मैंने इससे पहले लेक्चर्स में, यस, रिस्पॉन्ड मी, इसके पहले के लेक्चर्स में बताया मैंने, right now I have explained you, but in previous lecture also I have explained you in detail oxidation reaction. There are many definitions of oxidation. I have already explained. Swarangi, Yuvraj, you were there that time. I think so. Loss of oxygen and all. Explain किया हूँ बेटा मैंने. Yes, very good. तो बेटा वो याद रखना है, वो आपको फ्यूचर में 11 12 में भी काम आएगा. So oxidation in general I am reading or I am what explaining in what short what is oxidation reaction. Oxidation is nothing but the addition of oxygen, or we can say removal of hydrogen, or we can say loss of electron, or we can say increase in oxidation number. There are four main or important definition of oxygen are these four, right now? Addition of oxygen, removal of hydrogen, loss of electron, and increase in oxidation number. These are the four important definition of oxidation reaction, right now. So among this, in this topic, it is given that is only one, only that first one, that is addition of oxygen is called as oxidation reaction, है ना. कोई भी कोई, हाँ बोलो बेटा. Yes, yes, बोलो. Okay. So what I'm asking, the addition of oxygen is called as oxidation reaction, है ना. यहाँ पर सिर्फ यही डेफिनेशन है, मगर फ्यूचर में आप जाओगे तो यू विल गेट द डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशन, लाइक मैंने बोला कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन, loss of electron, and increase in oxidation number. These are also a definition of oxidation reaction. Now, combustion is the example of oxidation only. Let's take an example, one example over here. Uh, Ethanol, right now? When ethanol, what is the formula of ethanol? CH3CH2OH, right now? If you add oxygen in it, right now, कैसे ऐड करेंगे हम लोग, वी विल यूज अल्कलाइन KMnO4 और Ac3 Ca2CR2O7 एंड हीट, ये यूज करेंगे. व्हाट इज KMnO4 एंड K2CR2O7? दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नाउ व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द क्वेश्चन इज दैट, एग्जाम में भी आता है, फ्यूचर में भी हम लोग को लगेगा. व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करता है. The substance which helps in oxidation reaction is called as oxidizing agent. Now कैसे हेल्प करेगा, तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करेगा, ऐसा सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस, एंड
help that substance for oxidation reaction is called as oxidizing agent. So KMNO4 or K2Cr27, these two are oxidizing agent. They will provide oxygen to it, and you will get carbon. What you we will get this this part will convert into what C double bond OH. I will explain you. इसको ओपन करता हूँ कैसे कन्वर्ट होता है वो बता देता हूँ. बुक में नहीं दिया है, मैं आपको कन्वर्जन दिखाता हूँ. ये H ये ओपन किया मैंने, ये जो फॉर्मूला है उसको ओपन कर रहा हूँ. राइट ना. इफ यू प्रोवाइड ऑक्सीजन, दिस KMnO4 विल प्रोवाइड ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन विल प्रोवाइड. तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, लेगा, और यहाँ से क्या आएगा, पानी निकलेगा. क्या निकलेगा, पानी. वाटर विल रिमूव आउट फ्रॉम दिस एंड यू विल गेट CH3 CH C double bond. This is aldehyde. This is not acid, right? ना, we are getting acid over here. Now again ये जो aldehyde part है इसको स्क्रीनशॉट ले लो आपके रेफरेंस के लिए. लिया, इसके आगे की रिएक्शन बता रहा हूँ. लिया, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर कराता हूँ, बुक पे कराता हूँ तो बेटर रहेगा, एक कंटिन्यू मिलेगा आपको वापस से करके. तो इथेनॉल लिया. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, CH3CH2OH, राइट. तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ओपन करके लिखेंगे, समझने में इजी होगा. CH को ओपन ओपन किया, राइट, OH, राइट. इफ यू ऐड अल्कलाइन और एसिडिफाइड KMNO4 K2Cr27, कोई भी पार्ट आप ऐड करो, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इवन यू कैन यूज HNO3, यू कैन यूज Cr2O4, देर आर मैनी काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये लिस्ट है, आपको याद करना होगा फ्यूचर के लिए. फिलहाल के लिए आपके सिलेबस में एक ही दिया हुआ, दो ही दिया हुआ, बट आप जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको लिस्ट याद करना पड़ेगा. तो दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे विल प्रोवाइड ऑक्सीजन. The substance which provide oxygen to other substance to make oxidation reaction or to happen oxidation reaction, that substance is called as what, oxidizing agent. So oxidizing agent, right now, which provide oxidizing agent means which oxygen provide oxygen for oxidation. So what we are doing, अल्कोहल लिया मैंने यहाँ पर, उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड किया किसने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने. व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो KMNO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल प्रोवाइड नेसेंट ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन. यू शुड नो नेसेंट ऑक्सीजन, राइट. तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड किया. ये क्या होगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये वाटर से यहाँ से H और H से निकलेगा, रिएक्ट करेगा एंड वाटर विल एलिमिनेट फ्रॉम दिस, राइट ना. एलिमिनेट होगा वाटर and what will be form, CH3 CH double bond O, और we can write like this, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, C double bond O H, एक ही बात है. C double bond O इधर लगा दिया, इधर लगा, एक ही बात है, राइट ना, राइट. अगले केस में क्या होगा, अगेन ये KMNO4 जो है, KMNO4 जो है वापस से ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा. अल्कलाइन KMNO4 अगेन ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा. दिस ऑक्सीजन विल गो ब्रेक दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड के बीच में आ जाएगा एंड वी विल गेट CH3 C double bond O OH. दिस इज अवर एसिड. So alcohol, any kind of alcohol, this is ethanol, ethyl alcohol, but any kind of alcohol when react with any oxidizing agent, it will directly form what,
acid. It will form what? Acid. First it will form aldehyde and which is further converted into acid, carboxylic acid. Understood? Yes. Understood or not? So if you want, you can take a screenshot of this for your reference. Done? Okay. Now what we were doing here in chapter. So we have done with this reaction also, right? So what is oxidizing agent? The substance which is लिखा हुआ है यहाँ पे देखो बेटा. Yes, the substance which is capable of adding the oxygen to other substance is called as what? Oxidizing agent. Understood? मैं जैसे बोला था वही है. And here K2Cr2O7 and KMnO4 are nothing but a oxidizing agent. Let's do the activity number 4.5. What is given in this activity? What we have to do? We have to take 3 ml of ethanol right now in test tube and warm it in water bath. Right now here water bath is mentioned. It is very necessary and very important. You should always heat any kind of ethanol, any kind of alcohol in water bath only, right? Now you can't heat alcohol directly because they are flammable in nature, right? They are flammable in nature is what they catch fires when if you heat it directly. अगर डायरेक्टली हीट करेंगे तो आग पकड़ लेगा. तो अगर आपको हीट करना ही है इसको तो आप गर्म पानी में इसको रखेंगे और हीट करेंगे. ठीक है. मतलब एग्जांपल ये टेस्ट ट्यूब है, ये मेरा एक बीकर है जो पानी मैंने हीट किया हूँ, बॉईल किया हूँ पानी को और इसी के अंदर क्या करूँगा टेस्ट ट्यूब को रखूँगा. अब इसमें टेस्ट ट्यूब को रखूँगा कौन सा टेस्ट ट्यूब जिसमें इथेनॉल है. तो जब इसमें रखूँगा तो इथेनॉल क्या होगा पानी गर्म है तो उससे हीट हो जाएगा. देन वी विल ऐड 5% ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट. पोटेशियम पर मैग्नेट मीन्स व्हाट? तो बताएंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट. What is the formula of potassium permanganate? It is there on your screen only. What is the formula of potassium permanganate? No, no one knows. Where? You have written where? Which kind of search chart you are talking about? You send me KMnO4. Yeah, KMnO4 is a what? Potassium permanganate, right? Now and K2Cr2O7. What is the name of this compound? K2Cr2O7. K2Cr2O7. What is the name of this compound? You should know. They are most common oxidizing agent. Potassium dichromate. What is the name of this compound? Potassium dichromate. K2Cr2O7 potassium dichromate. KMnO4 potassium permanganate. So here what we have to do, we have to add alkaline potassium permanganate means what we have to add? We have to add KMnO4 5% solution, right? Drop wise you will add, right? What will happen? क्या होगा? पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है. पोटेशियम परमैंगनेट कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है. तो यहाँ पर पर्पल कलर किसकी वजह से है? उसके अंदर ऑक्सीजन है ना. पर्पल कलर इज ड्यू टू व्हाट? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन. KMnO4 कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन. बट जो ऑक्सीजन की वजह से पर्पल कलर है वो ऑक्सीजन को कौन यूटिलाइज करा? अल्कोहल यूटिलाइज कर देगा. अल्कोहल यूटिलाइज करेगा एसिड बना देगा. अगर अल्कोहल यूटिलाइज कर लिया तो ये जो इसका पर्पल कलर गायब हो जाएगा, है ना. द पर्पल कलर विल डिसअपियर. तो डज द कलर ऑफ क्या लिखा है? हाँ, तो यहाँ पे कलर के बारे में पूछा है हम लोगों को कि वो क्या कलर जो है रहेगा कि नहीं रहेगा. तो इट विल डिसअपियर. यहाँ पे लिखने का कि हमारा जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो है वो क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा. अंडरस्टूड. जब अल्कोहल के अंदर आप डालेंगे. पर अगर अल्कोहल की जगह स्टार्ट में आप पानी लिए होते तो बिकॉज पानी वाटर डज नॉट कंज्यूम एनी काइंड ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम KMnO4
तो पानी में आप हीट कितना भी करो KMnO4 को डाल के, आप तो लैब में जाके तो टेस्ट ट्यूब ले लो। एक टेस्ट ट्यूब मैंने क्या किया, अल्कोहल लिया, एक टेस्ट ट्यूब क्या लिया, वाटर लिया, इसको हीट किया ताकि गर्म हो जाए। अब इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला, इसमें भी पोटेशियम परमैंगनेट डाला। होगा क्या, ये वाटर में जब पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट जो रहेगा एज इट इज रहेगा, पर्पल का पर्पल ही रहेगा। बट हियर इट विल बिकम कलरलेस। ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो है गायब हो जाएगा, बिकॉज अल्कोहल ने वो जो ऑक्सीजन है जिसकी वजह से कलर आ रहा है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया, एंड बिकॉज ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया और वो एसिड बन गया है, तो इसीलिए हमारा वो कलर गायब हो जाएगा। आगे क्या बोला है, इफ़ यू ऐड एडिशनल, मतलब एक्सेस में अगर आप डालोगे पोटेशियम परमैंगनेट, व्हाट विल हैपन, कि वो कलर गायब होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझो एग्जाम्पल 10 मोल थे, कितने मोल थे अल्कोहल के, 10 मोल थे, तो आपने यहाँ से KMnO4 डाला पहली बार 1 मोल डाला, तो 1 मोल ने 1 ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। दूसरा मोल डाला, तो डालते जा रहे 10 ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज होकर किसके ज़रिए, 10 इथेनॉल से, बराबर ना। बट अगर मैं 11वां मोल डालूंगा KMnO4 का, तो उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पे अल्कोहल बचा ही नहीं ना, सारे के सारा अल्कोहल जो है कन्वर्ट हो चुका है इन एसिडिक एसिड। सारा का सारा अल्कोहल जो है ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके कन्वर्ट हो चुका है। अब नाउ देयर इज नो अल्कोहल, इफ यू ऐड फर्दर मीन्स एक्सेस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, सो अगेन जो कलर है वो कलरलेस से वापस से क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। अंडरस्टूड, समझा। अंडरस्टूड। मैं बार बार अटेंडेंस इसलिए ले रहा हूँ, जो भी प्रेजेंट रहेगा अकॉर्डिंगली अटेंडेंस लगाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको पूरे लेक्चर में प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक फर्स्ट सेक्शन में नहीं हो, स्टार्ट में हो, बाद में नहीं हो, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका मतलब ऐसे नहीं। जहाँ पर बच्चे कम रहेंगे वो स्क्रीनशॉट मैं अटेंडेंस के ग्रुप में डालूंगा, ताकि जो बच्चे गायब हुए उनको उनके रेडी पैड्स कॉल जाए, राइट। तो यू शुड बी प्रेजेंट, यू हैव टू प्रेजेंट टिल एंड, आपको आखिरी तक रुकना है, ऐसा नहीं कि भाग जाना है, right. So understood na, what is oxidation reaction and what is this activity 4.5, understood na, and what is oxidizing agent, understood na. Now addition reaction and substitution reaction. Now the question is that what is addition reaction and what is substitution reaction, right. Addition reaction क्या है और substitution reaction क्या है, वो हम लोग को देखना है। वही था, wait for 1 minute. Okay, okay, let's continue. Addition reaction or substitution reaction. What is addition reaction? As I told you last time only, कि जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेंगे तो वहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगा। इन सैचुरेटेड कंपाउंड लाइक द सिंगल बॉन्ड अगर रहेगा वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहेगा। कब वो क्यों होता है बताया था मैंने, एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल वो ग्लास ऑफ वाटर का एग्जांपल दिया था मैंने। ग्लास ऑफ वाटर अगर खाली है, आधा है, तो उसमें अगर मैं आधा ग्लास पानी वो ऐड करूँगा तो क्या होगा, ये पानी क्या होगा उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब एडिशन कब होता है, जब जगह रहेगी, खाली रहेगा। बट अगर यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर भरा हुआ है और उसमें आधा ग्लास पानी ऐड करूँगा तो क्या होगा, ये आधा ग्लास ऑफ वाटर ये उसकी जगह पे जाएगा और जितना ये पानी अंदर गया उतना पानी बाहर गिरेगा, जितना पानी अंदर गया उतना पानी बाहर गिरेगा। यहाँ से मेरे को मालूम पड़ा कि क्या मालूम पड़ा कि जब जगह पूरी भरी हुई है उसमें जगह नहीं है, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में जगह नहीं होती है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में जगह होती है। तो सिंगल बॉन्ड में कोई जगह नहीं है, जगह ऐड होने के लिए कोई जगह नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब जो पहले से बैठा है उसको निकाला जाएगा और उसकी जगह आने वाला चीज़ जाएगा। अंडरस्टूड, समझा। व्हेन एडिशन टेक प्लेस, व्हेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस, समझा बेटा। So here it is given example of addition reaction means if you take any kind of alkene, ethene, right ना, CH2 double bond CH2, right. If you want to make ethane, मतलब अल्केन बनाने का है, एक कार्बन एक बॉन्ड करने का है, तो what we have to do, we have to add हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जैसे ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन इसके
पास जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, एंड यू विल गेट व्हाट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। और हाइड्रोजन भी को ये क्या है, बहुत जिद्दी है, पढ़ाई नहीं करता, जैसे हमारे जैसा है कि पढ़ाई नहीं करता, जो पढ़ाई नहीं करता बच्चा तो उसको मार के पढ़ाना पड़ता है, राइट। सिमिलर वे में यहाँ पर क्या है, बच्चे ये जो हाइड्रोजन है वो काम नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता, रिएक्शन नहीं कर रहा तो पहले क्या करना पड़ता है, यहाँ पर लॉलीपॉप देना पड़ता है। बच्चा पढ़ाई नहीं करता, पहले लॉलीपॉप देते हैं, बेटा ये पढ़ ले, देखो घड़ी दिला दूंगा, बाइक दिला दूंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो लॉलीपॉप मतलब कैटलिस्ट, लॉलीपॉप मतलब क्या, कैटलिस्ट। वी विल यूज रेने निकल, यहाँ पे लिखा निकल कैटलिस्ट, तो उसका नाम क्या है, रेने निकल। तो रेने निकल यू कैन यूज। पैलेडियम, प्लेटिनम, ये भी एक अच्छे कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए। हाइड्रोजन के लिए हम लोग कैटलिस्ट यूज करेंगे, और कैटलिस्ट से भी लॉलीपॉप से भी काम नहीं बना तो हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, और कुछ केस में दोनों भी करते हैं। तो हीट एंड कैटलिस्ट, समझा हम लोग को, समझा, बोलो यस, एक ही बच्चे में समझा, yes students, understood na? Now always remember that if you talk about oils and fat, right na, oil and fat, the formula of oil and fat always same. क्या होता है, oil and fat का formula हमेशा same होता है, but difference is that oils are, all vegetable oils are unsaturated carbon, unsaturated, right ना, they consist of double bond और triple bond। जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बढ़ेगा उतना वो जो है ना वो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, मतलब ऑयल की तरह बनेगा। और जितना डबल बॉन्ड गायब होते जाएगा, सिंगल बॉन्ड बनते जाएगा, तो उतना ऑयल जमेगा और वो सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, लाइक फैट, फैट की तरह सॉलिड हो जाएगा। तो सॉलिड अगर दिख रहा है इसका मतलब फैट है, तो आप बोलेंगे ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अगर ऑयल है तो आप बोलेंगे क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ऑब्वियसली ऑयल है, तो ऑयल में बिकॉज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब डबल बॉन्ड होता है, तो देयरफॉर ऑयल का ऑक्सीडेशन होगा, ऑयल का एडिशन रिएक्शन होगा। ऑयल में क्या होता है, हम लोग आसानी से एडिशन रिएक्शन होता है, अंडरस्टूड, समझा, यहाँ पे वही दिया हुआ है, बट फैट में नहीं है। तो देखो यहाँ पे आगे क्या बोला, वही यहाँ पर यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट स्टेटिंग दैट सम वेजिटेबल्स ऑयल्स आर हेल्दी, राइट। व्हाई हेल्दी, बिकॉज वेजिटेबल ऑयल्स कंसिस्ट ऑफ व्हाट, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, राइट, अनसैचुरेटेड होता है, मतलब डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड जो है हेल्दी होता है। बट अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, सैचुरेटेड कंपाउंड रहेगा, ऑल सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर, या मोस्ट ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर व्हाट, आर हार्मफुल टू हेल्थ, दे आर हार्मफुल टू हेल्थ। तो आप चर्बी की चीज़ें कोई भी खाएंगे तो आपको क्या होगा, आपको हार्मफुल मीन्स व्हाट, नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, हार्ट की डिसीज होती है, हार्ट ब्लॉकेज जो होती है ना वो होते हैं, और उसकी वजह से क्या हार्ट अटैक आने की चांसेस होते हैं, अंडरस्टूड। Okay, now next one is your substitution reaction. As I told you, substitution reaction. Shaurya, mute yourself. Shaurya, beta, you should mute yourself. No? Shaurya, are you there? Now respond me, beta. Respond me fast. I am talking to Shaurya. MFP, where were you, beta? क्यों इतना लेट ज्वाइन किए? टेक केयर ऑफ योर डिवाइस, बेटा, बना दोगे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। Okay, saturated hydrocarbon, right? As I told you, substitution reaction always take place in saturated hydrocarbon, right? Saturated hydrocarbon के presence में ही क्या होता है, substitution reaction होता है। Now, what is given over here? They are fairly unreactive and inert in presence of what? Most of reagent. Normally saturated hydrocarbon क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, राइट। तो हम लोग को इनको रिएक्शन करने के लिए हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, तो एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट प्रोवाइड करते हैं। तो दे रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मोस्ट ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट अंडरगोस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये क्या होता है, वी सी इन 11, राइट ना,
Cl. What will happen? यहाँ का H यहाँ का Cl निकल जाएगा and this Cl will replace this right now. Now here the replacement is taking place. Right? Hydrogen की जगह पे chlorine आएगा. So you will get CH3, yes, and Cl. So this Cl is come in place of what? Hydrogen. Thus HCl will comes as a byproduct. Right? Understood? Now, next topic is what some important carbon compound like ethanol, ethanoic acid, BPF3, the reaction and properties of such compounds. Right? So we start with ethanol. Ethanol से ये start करते हैं हम लोग. Ethanol, what is the properties of ethanol? What is the properties of ethanol? तो ethanol की property क्या होती है? तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ. Ethanol is liquid in nature in RT. RT का मतलब क्या है? Room temperature. मतलब अगर room temperature पे रखूँगा, रूम पे रखूँगा, रूम में रखूँगा, तो उसमें मतलब हीटिंग भी नहीं प्रोवाइड करा, कूलिंग भी नहीं करा, एक नॉर्मल टेम्परेचर रखूँगा, तो दे ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ लिक्विड. Now next point is very important for your chemistry point of view. To improve your chemistry, you should understand this point. Right? So here if you see now, beta, here if you see, uh, sorry, yeah, beta. Here if you see the boiling point of what alcohol. Ethanol is also called as alcohol. The general name of ethanol is what? Alcohol. It is belongs to this family only, right? Ethanol, methanol, these are belongs to alcohol family only, right? So alcohol, I'm talking in general. So all alcohols are having higher boiling point compared to what normal alkane of having same molecular mass. मतलब एक तरफ अल्कोहल है, समझो एग्जांपल ए अल्कोहल है और दूसरा क्या है वो एक जो है मेरा अल्केन है. अल्केन को मैं ए के ए एल लिख रहा हूँ, बराबर ना. तो अगर दोनों का मास सेम है, दोनों का मॉलिकुलर मास सेम है, तो अगर मैं इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? सेम रहेगा, ज़्यादा रहेगा. इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा अल्कोहल का. नाउ व्हाई दिस इज सो? इट शुड बी, आपको पता होना चाहिए, राइट. आपको इट शुड बी क्लियर टू यू, ये आपको पता होना चाहिए. सो alcohol, in case of alcohol, if you write the formula of alcohol CH3OH, right? If you write the formula of methane, right? One carbon alkane, ये methane हो गया. इसको अगर सही से लिखेंगे तो you can write like this also, right? So here you have OH, here you have H, right ना. तो because here you have OH, right ना, तो यहाँ पे क्या होगा? There is a possibility for formation of hydrogen bond. क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड. नाउ व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का बॉन्ड होता है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है किसके बीच में? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, इनके बीच में होता है, राइट. एंड हाइड्रोजन के बीच में, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्लोरीन एंड हाइड्रोजन नाइट्रोजन. हाइड्रोजन का अट्रैक्शन, ये सारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो होता है अट्रैक्शन, उस अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. तो बिकॉज इन केस ऑफ अल्कोहल oxygen is there which is highly electronegative atom, hydrogen is there which is hydrogen, so they can form hydrogen bond. And because we are having hydrogen bond means additional force of attraction is there. यहाँ पर मीथेन के केस में बात करेंगे, वेट मीथेन के केस में अगर बात करेंगे तो दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, नॉर्मल अट्रैक्शन होता ही है, राइट. नॉर्मल अट्रैक्शन होगा. तो ये अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए समझो एग्जाम्पल 50 डिग्री लग रहा है टेम्परेचर, कितना लग रहा है? 50 डिग्री लग रहा है. बट अगर मीथिनॉल दूंगा, ओवेज लूंगा, तो यहाँ पर नॉर्मल अट्रैक्शन जो था वो रहेगा, मगर अपार्ट फ्रॉम दिस हाइड्रोजन बॉन्ड भी रहेगा. तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, तो अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो टेम्परेचर लगता है उसी को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. बिकॉज यहाँ पर अट्रैक्शन बढ़ गया है, तो देयरफॉर वी कैन से in case of alcohol the force of attraction is greater compared to alkane, therefore alcohol has greater or higher boiling point. Understood? Yes. एक ही बच्चा है क्या? Understood? Okay. Yes. Now next topic पे जाते. Yes. Yeah, I have not mentioned na, it is given in your textbook. Physical property written or there? No, it is not written. Yeah, it is a physical property only, right now. I should mention there that, but because in your textbook it is mentioned it is property of ethanol, right now.
So we are talking about properties of ethanol. These are the physical property. These are the physical property, and then we later on we will see the chemical property also. Understood? Okay, beta. Yeah, it is colorless. Very good. No, yes, no effect on litmus paper because it is what neutral in nature. Ethanol is what neutral in nature. So because it is neutral in nature, therefore it has no effect on litmus paper. It is colorless. We can say it is flammable in nature. If you talk about physical property which is not given in your textbook, so there are many kind of physical property which is not given in your textbook, but मेरे को आपको वही पार्ट पढ़ाना है जो टेक्स्ट बुक में है और थोड़ा बहुत एडिशनल बोला तो ठीक है। अब ज़बरदस्ती मैं बहुत सारा बढ़ाऊंगा तो टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा और आपको वो नीड नहीं है, राइट ना। बेटा कलरलेस की बात करो, ये सब ज़रूरत नहीं है। जो हाँ नीड है आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए कंपलसरी है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल, राइट ना। तो आपके बुक में नहीं भी रहेगा तो मेरा काम है उसको एक्सप्लेन करना ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो और आपको फ्यूचर में ईजी हो, बराबर है। बट फिलहाल के लिए अगर मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, देयर आर मैनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, तो अगर एक एक पॉइंट बताने बैठूंगा तो वो टाइम लगेगा ना बेटा। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेंशनिंग दैट पॉइंट्स। अंडरस्टूड? इवन बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट गिवन, इतना ज़्यादा नहीं दिया था बॉइलिंग पॉइंट, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, मगर मैंने यहाँ पे इतना डीप में लेके बताया आपको और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है बिकॉज ये आपको 12 में लगेगा। आप जब एंट्रेंस के एग्जाम सॉल्व करोगे तो आपके उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, ज़रूरत लगेगा कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम कंपाउंड इज ग्रेटर देन अदर। वाई? बिकॉज अगर कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, तो हमको समझ जाना चाहिए उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। मीन्स सम फोर्स इज ग्रेटर, मतलब एक कुछ एक्स्ट्रा फोर्स उसके अंदर आ गई है और फोर्स जितना बढ़ेगा उतना उसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा और जितना टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा लगेगा। अंडरस्टूड? ओके, सो लिक्विड हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्कोहल। इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट। वाई गुड सॉल्वेंट? सॉल्वेंट आर नथिंग बट वॉट, सॉल्वेंट क्या होता है, इसको जनरल वे में एकदम ईजी में बताओ तो दाल बनाते हैं, घर में दाल बनी हुई है अपनी, दाल बनती है तो दाल में व्हाट इज वाटर, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर। अपने घर में दाल बनती है ना, दाल समझता है ना, राइट। तो हाँ, तो दाल बनाने टाइम पे व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर। जैसे नमक डालते हैं, नमक हम लोग को मालूम है इट इज़ सॉल्टी इन नेचर, नमकीन होता है तो उसके लिए हम लोग नमक डालते हैं। स्पाइसी डालते हैं हम लोग, मिर्ची डालते हैं उसके अंदर, क्यों? क्योंकि तेज़ होने के लिए थोड़ा सा, है। हर एक का अपना अपना रोल है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर इन दैट, मास्किंग दैट, इट विल प्रोवाइड द मीडियम टू मिक्स अप अदर थिंग, राइट ना। सारी चीज़ों को मिक्सअप करने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करेगा। तो सॉल्वेंट इज वाटर, वाटर यहाँ पर इन दिस केस वाटर इज अ सॉल्वेंट। अंडरस्टूड? व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्वेंट कोई काम नहीं होता, सॉल्वेंट सिर्फ क्या होता है, रिएक्शन करने में हेल्प करता है, मतलब एक मीडियम प्रोवाइड करेगा। अब रिएक्शन हो गया, अगर वाटर का काम नहीं है तो वाटर वो अच्छा सा, सॉरी, अगर रिएक्शन हो गई और सॉल्वेंट का काम नहीं है तो सॉल्वेंट वो अच्छा सॉल्वेंट होता है जो रिएक्शन होने के बाद उसको आसानी से निकाला जा सके, आसानी आसानी से उसको। अभी रिएक्शन में था, मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं, बस मिक्सअप हो गया सब चीज़ें, अब निकालने की ज़रूरत, उसको उसको निकालना है मेरे को सॉल्वेंट को, तो वो आसानी से निकल जाए, तो वो चीज़ को हम लोग बोलते हैं इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट। समझा? तो गुड सॉल्वेंट क्यों, अल्कोहल इज गुड सॉल्वेंट बिकॉज इट इज़ वोलेटाइल इन नेचर। ना व्हाट इज वोलेटाइल इन नेचर? जो उड़ जाता है ना। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 65 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल? बॉइलिंग पॉइंट में मेंशन नहीं है, तो 65 डिग्री सेल्सियस है। तो 65 मतलब बहुत कम है ना बेटा, 100 से कम है। तो आप उसको हवा में खुला रखेंगे लाइक पेट्रोल, उड़ जाएगा वो। तो एग्जाम्पल, मैंने कोई चीज़ रिएक्शन करा और उसमें मेरे को अल्कोहल नहीं चाहिए तो उसको मैं थोड़ा सा हीट करूँगा या फिर खुला रख दूंगा, तो एक आधे एक घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद देखूंगा तो वो अल्कोहल गायब हो चुका रहेगा, अल्कोहल उड़ गया। इसी देयर फोर इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट। अंडरस्टूड? Understood. Next, if you talk about ethanol, ethanol are also used in many kind of manufacturing of many kind of medicines. बहुत सारे मेडिसिन के प्रिपरेशन में इसका यूज़ होता है, लाइक टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन क्या होता है? इट इज़ अ कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर गार्गलिंग। गार्गल आते हैं ना नॉर्मली, आप गार्गल, बेटाडाइन गार्गल देखा होगा, गले में आपको कहीं अगर गले में जल रहा है, दुख रहा है और गले में कुछ खराश आ रही, लाइक, या गला लाल हो गया है तो डॉक्टर आपको है ना गार्गल लिख के देता है। नॉर्मली डॉक्टर लोग बेटाडाइन गार्गल लिख के देते हैं। बेटाडाइन गार्गल कंसिस्ट ऑफ व्हाट?
आयोडीन ऑनली, टिंचर आयोडीन नहीं रहता उसके अंदर। टिंचर आयोडीन जो है हमारा, जो एक्चुअल में गले के अंदर जो होता है, टिंचर आयोडीन इज अ गुड एंटीबायोटिक। तो हमारे गले में जो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको फील करता है, पहला पॉइंट ये है। और इट इज़ गुड फॉर व्हाट, थायराइड। थायराइड के लिए आयोडीन बहुत अच्छा होता है। तो टिंचर आयोडीन से हम लोग गार्गल करेंगे तो हमारे गला अच्छा रहेगा। तो टिंचर आयोडीन के प्रिपरेशन में जो है हमारा इथेनॉल एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। इवन मैनी सिरप, सिरप के अंदर हम लोग अगेन उसको उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए उसमें अल्कोहल डालते हैं ना। देखिए हम लोग सिरप सिरप देखे हो ना, जैसे कि ग्लाइकॉल अपना वो होता है, खांसी का सिरप होता है, खांसी के सिरप में अल्कोहल होता है, इसीलिए खांसी के सिरप में हम लोग को नींद आती है। आप खांसी का सिरप पियो तो आपको नींद आने लगेगी। वाई? बिकॉज उसके अंदर अल्कोहल होता है। इवन टॉनिक्स, मेनी टॉनिक्स कंसिस्ट ऑफ व्हाट, अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस परफ्यूम कंसिस्ट ऑफ अल्कोहल, परफ्यूम के अंदर अल्कोहल होता है, एक्सेट्रा। So these are the uses which is in which alcohols are used. Now, if you consume alcohol, what will happen? Right? We will feel drunkenness. Right? ना हम लोग को पिया हुआ लगेगा, पिया ड्रंक जैसा लगेगा. Right? Then what is given over here? If you intake the pure ethanol, right? ना यहाँ पर ये जो कंजम्पशन की बात कर रहा है, ये शराब की बात कर रहा है, दारू की बात कर रहा है, और इम्प्योर अल्कोहल की बात कर रहा है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट प्योर अल्कोहल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट इथेनॉल, इफ़ यू इनटेक एब्सोल्यूट इथेनॉल, इट विल बी लिथल. लिथल मतलब क्या होता है? डेथ हो जाएगी आपकी, राइट ना. इट कैन कॉज डेथ. समझे? थोड़ा भी अगर अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेनॉल आपने प्योर प्योर इथेनॉल को इंटेक किया, आप मतलब जो भी बंदा इंटेक करेगा वो ऊपर की टिकट कटा लेगा. अंडरस्टूड? Okay, now we will see the some reactions of ethanol. Two reactions is given in your textbook. You can see it over there, right? Now, two reactions are there. First one is what, reaction with sodium metal, and then we have to prepare alkene from ethanol, right? How to prepare alkene from ethanol, we will see. So I am again showing it uh, by कैमरा, बाय यूजिंग कैमरा, राइट. कैमरे का यूज़ करके मैं यहाँ पे बताऊंगा. तो इथेनॉल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल? CH3 CH2, right, OH. If you add sodium metal in it, what will happen? Sodium is what? Highly reactive in nature, right? Most reactive metal it is, right now. Sodium, potassium are highly reactive metal, so they will replace hydrogen and they will form what? Sodium salt of what? This, or we can say sodium ethanoid. What I will get? Sodium ethanoid, right? Sodium salt of this alcohol we will get. Understood? अरे हाँ है ना. एंड ये जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा? ऐसे ही निकल जाएगा. एंड हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में हमेशा निकलता है? हाइड्रोजन विल ऑलवेज रिमूव एज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन H2, राइट ना. ये हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकलेगा. बिकॉज इट इज गैस तो इट विल इवॉल्व, निकल जाएगा. नाउ हाइड्रोजन हियर, हाइड्रोजन इज 2, हियर हाइड्रोजन इज 1, सो आई विल पुट 2 ओवर हियर टू मेक इट 2, राइट. यहाँ 2 किया तो ये पूरा पार्ट 2 हो गया. तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पे 2 करना पड़ेगा. इसको 2 किया तो ये है सोडियम 2 हो गया. तो इसको बैलेंस करने के लिए आई विल पुट 2 ओवर हियर. नाउ रिएक्शन इज बैलेंस. अंडरस्टूड? So what is the observation in this reaction? When you put sodium metal in alcohol, you will see a gas evolved from this. And gas, which gas will evolve? Hydrogen. Always alcohol, when you add sodium metal in alcohol, you will get hydrogen gas as a byproduct. Understood? Yes, tell me. समझा या नहीं समझा? अरे आप लोग हो या चले गए, सो गए? Understood or not? Respond me fast. Am I audible? तो रिप्लाई ना बेटा, अंडरस्टूड और नॉट ऐसा. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट? वी हैव टू रिएक्ट, वी हैव टू फॉर्म अल्कीन. अल्कीन मींस व्हाट? वी हैव टू, ये मेरा अल्कोहल है, राइट. इसके अंदर मैं क्या डालूंगा तो अल्कीन बनेगा. तो अल्कीन बनाने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा. डबल बॉन्ड मतलब जैसे हम लोग देखो इससे पहले किया था यहाँ पर, कहाँ किया था? नहीं यहाँ नहीं, अभी बताया था मैंने आपको. यहाँ रिएक्शन नहीं, यहाँ देखा था. डबल बॉन्ड जब था, राइट ना, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए क्या किया था हम लोगों ने? डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए हमने हाइड्रोजन ऐड किया था, राइट ना. एक इधर गया था, एक इधर, और सिंगल बॉन्ड बन गया. याद रखना, कोई भी चीज़ ऐड होंगी
तो क्या होगा, हमारा दोनों कार्बन से पे ऐड होंगी तो वहाँ डबल बॉन्ड हट जाएगा, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और सिमिलर वाइस वर्सा, अगर सिंगल बॉन्ड में से आप कोई चीज़ निकालोगे, रिमूव करोगे, सिंगल बॉन्ड में से कोई दो एक एक चीज़ ये कार्बन से निकालेंगे, एक ये कार्बन से निकालोगे, तो वहाँ पे दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट ना। If you remove some atom from the adjacent carbon atom, so single bond will convert into double bond and vice versa. Understood? So I am writing the formula CH2 OH and H. चलेगा ऐसा? आपको आपत्ति नहीं है ना? ऐसा एक ही बात है, ये चीज़ को मैंने ओपन करके लिखा, समझा ना? एक ही बात है ना। CH3 का H बाहर निकाल दिया, OH कैसे लिखा। नाउ इफ यू ऐड, क्या ऐड करेंगे, इफ यू ऐड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या ऐड करोगे आप, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर आप ये इसमें ऐड करोगे तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या है इसका नाम, ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेटिंग एजेंट, द एजेंट विच हेल्प टू रिमूव द हाइड्रा, हाइड्रा मीन्स वाटर, वाटर निकालने में हेल्प करने वाले को उसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग। तो जैसे ही यह डालेंगे और हीट करेंगे तो यहाँ से H और यहाँ का OH निकल जाएगा और ये जो बॉन्ड है वो अंदर आ जाएगा, बॉन्ड अंदर आ जाएगा तो व्हाट I will get CH2 double bond CH2 and water will eliminate from this. Understood? In this way you will get unsaturated compound, or we can say alkene from this, right now. So if anyone if anyone says you that form unsaturated hydrocarbon from the alcohol, so what you will do, you will add H2SO4 in it. H2SO4 add करेंगे, H2SO4 will work as a dehydrating agent, it will remove water from the compound and from the alcohol, and it will give alkene to you. This is our alkene, or we can say unsaturated hydrocarbon. Understood? समझा बेटा? Okay बेटा. Now take a screenshot of this page. Done? Okay. Till yet, any doubt is there? Understood properly? Very good बेटा. Very good. So I think so our timing is over now. Only 2 minutes are left, so we will start that which one, एक्टिविटी नंबर 6 पॉइंट इज देयर, 4.6 इज देयर। तो उसमें क्या बोला है कि ड्रॉप अ पीस ऑफ सोडियम मेटल इन व्हाट, इन इथेनॉल। इथेनॉल में आप डालेंगे सोडियम मेटल बहुत कम, छोटा सा, राइस के उतना डालने का, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो वो उड़ेगा, तो उड़ डालेगा अपने टेस्ट ट्यूब को। तो छोटा सा एकदम बारीक सा हिस्सा आप अगर टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो व्हाट यू ऑब्जर्व, तो मैंने बोला कि आपको यहाँ पर गैस निकल के बबल जो होते हैं दिखेंगे, बबल दिखेंगे। बबल मीन्स व्हाट, गैस निकल रही है, एंड गैस कौन सी रहेगी, गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस रहेंगी। तो अगर आपको टेस्ट करना है वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है, कंफर्म करना है, व्हाट यू विल डू, यू विल, आप वो जो टेस्ट ट्यूब था, मेरा टेस्ट ट्यूब है, समझो एग्जाम्पल टेस्ट ट्यूब है, तो ये टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, नीचे अल्कोहल लिया और इसमें एक छोटा सा पीस सोडियम मेटल का डाला, तो यहाँ से बबलिंग होगी, गैस निकलेगी, गैस निकलेगी। तो गैस कौन सी पता करना है तो आप क्या करेंगे, एक माचिस जलाएंगे और माचिस को उसके नज़दीक लेके आ जाएगा, यहाँ पे लेके जाइए, मगर ये चीज़ बहुत सेफ्टी से करना होता है, केयरफुली करना होता है, ये आग पकड़ सकता है बेटा। यहाँ पे ना पॉपअप साउंड आपको सुनाई देगा, ये हाइड्रोजन गैस है ना, तो हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेंगे और एकदम से फट करके आवाज़ आएगी, राइट ना। अंडरस्टूड? और पॉपअप साउंड आउट सुनाई दिया, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस जो है निकली है। अंडरस्टूड? Okay, so we will stop over here. Next time we will start with what, that is activity number 6, 4.7, or point number 4.4.2, properties of ethanoic acid. That point we have to start, and maybe in next lecture we will complete our chapter. Okay? Okay, understood beta? Okay, so I am going to stop over here. Let me take the attendance again. Okay, thank you so much.